السلام علیکم خالہ جان، جی کیا حال میری چال ہے؟ پیارا بچہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں خالہ سے اس دن میری فون پہ بات ہوئی تو بڑی مزیدار باتیں انہوں نے کی، تو خواتین کے بارے میں اور رشتے ٹوٹنے کے بارے میں، ساس بہو سسر میاں تو میں نے کہا خالہ میں بیٹھ کے آ کے آپ سے بات کرتی ہوں، یہ تو آتی نہیں ہے، تو ہم ان کے پاس آ گئے۔ میں نے کہا کہ چلیں پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، ویسے بھی بزرگوں کے پاس بزرگوں کے پاس آنا چاہیے۔ تو میری پیاری بزرگ ہے، اور یہاں پر اب بزرگ بھی کم رہ گئے ہیں خالہ۔ ہاں واقعی۔ ارے بزرگ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، ہاں، اڑ گئے۔ ایک دفعہ وہ میرا بھتیجا آیا، ہم، اس وقت میری ساس بھی تھی، میری نند بھی تھی اس گھر میں بھی تھی، ماشاءاللہ سارے اکٹھے رہے، احمد دیکھیے کی شادی ہو گئی تھی، اس کی فیملی بھی وہ بھی تھی، سارے تھے، سارے تھے نا۔ تو کہتا ہے کتنا خوش نصیب گھرانہ ہے، بالکل، اس میں تو جہاں کوئی شک نہیں، بزرگ بھی ہیں اور چھوٹے بڑے۔ جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ تو ہمارے گھر میں تو ماشاءاللہ ابھی بھی، اب میں ہوں، میرا بیٹا ہے، اس کی بیوی اور بچے ہیں، پھر آگے اس کا بیٹا عبداللہ، اس کے بچے، ہاں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چھوٹی بچی 1 سال کی ہے، وہ دادی 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 کرتی پھرتی ہر ہے، سائز کے بچے ہر موجود ہیں، سائز کے ہر بچے سائز کے۔ الحمدللہ۔ اور انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ یہ گھر بنا ہوا ہے 2 کنال میں ہے نا پورا، یہ پورا 2 کنال کا پلاٹ تھا، ایک میں ہم یہ نے پہلے انہوں بنایا۔ نے بنایا ہوا تھا، اور یہاں پر سارا لان تھا، اور سبزیاں لگاتے ہیں، اور مزے میں انکل جو ہیں بہت شوقین، بہت تو اب چھوٹا سا گھر یہاں پر بنا لیا ہے۔ یہ جو ہے نا، اس گھر کی بھی کہانی سنو۔ ہاں میں نا وہ کینٹ والا گھر ہے نا، وہ تو لالی کے نام ہے، اچھا، اور یہ فاروق کے نام ہے۔ ساروں کو اپنے اپنے ٹائم پہ دے اچھا، دیا، ایک تو یہ بھی خالہ بہت ہاں اچھی بات ہے۔ یہ دے دیا نا۔ ہاں اب یہ پلاٹ تھا 1 کنال کا، ہاں تو میں احمد شجاع کو کہتی تھی کہ فاروق احمد کی فیملی سب سے زیادہ اس کے پاس گھر نہیں ہے، اچھا، تو انہوں نے، ہم نے جو ہماری جمع پونجی تھی نا، وہ تھی 40 لاکھ، اور وہ 40 لاکھ ہم نے بینک میں رکھا ہوا تھا، اور احمد کے نام تھا وہ۔ تو جس دن شجاع فوت ہوئے ہیں، وہ احمد کے حوالے کیا، تو احمد کو کہا یہ تمہارا ہے اور یہ پلاٹ تمہارا ہے۔ دیکھیے تو احمد جو ہے نا، سب کو مل گیا۔ اس کی جو تھنکنگ ہے نا، وہ یہ ہے کہ بڑے گھر کی تو ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے، بالکل۔ گھر چھوٹا ہونا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں 5 مرلے میں یہ گھر بنا ہوا ہے، اور اس دن وہ آیا میرا بھتیجا جو جنرل ریٹائر ہوا ہے نعیم، تو اس نے دیکھا تو کہتا ہے اب اگر میں، اس نے 2 کنال میں بڑا زبردست گھر بنایا ہوا ہے 3 سٹوری، تو وہ کہتا ہے اس نے یہ دیکھا اتنا خوش ہوا، کہتا ہے اب اگر میں بناؤں تو میں ایسا گھر بڑے بڑے گھر بنانے، مینٹین کرنے، ان کی خالہ صفائیاں کرنی، سب کچھ بہت مشکل ہے۔ اور یہ اور ایک اور احمد جو ہے قرآن سنت پہ چلتا ہے، اس کے گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے، اس کی بیوی کھانا پکاتی ہے، کرتی ہے، خود کرتے ہیں بیٹی ماشاءاللہ۔ سب کچھ کرتے ہیں، تو خالہ یہ ایک ساتھ رہنا بھی تو بڑا مشکل ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ آسانیاں ہیں۔ ہاں، یہ آج کل تو جو لڑائیاں جھگڑے اور طلاقیں اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ٹالرنس نہیں ہے۔ تو کس طرح ٹالرنس پیدا کریں؟ مسئلہ یہی ہے۔ وہی یہ ہے کہ آپ جس طرح دیکھیں گے، آپ خود مثال پیدا کریں۔ میں نے، یعنی کہ آج تک ہمارے میں کبھی اونچ نیچ ہوئی نہیں، اور میں کہتی ہوں کہ یہ، میں کہتی رہتی ہوں، میں نے کہا ہماری اتنی خوش قسمت فیملی ہے، بھائیوں میں بھی بہت پیار ہے، اور آگے ان کے بچوں میں بھی، تو آپ پیار دو اور پیار لو۔ اور تو خالہ کئی دفعہ نہیں بھی ہوتا نا، پھر کیا کریں؟ ایک بڑے کی ذمہ داری ہے، اور دیکھو بڑے بیچ میں آئے، اگر کوئی مسئلہ ہو۔ بڑے اب اس گھر میں میں بڑی ہوں، مجھ سے پوچھ کے چلتے ہیں، سارے مشورہ کرتے ہیں، تو اچھا کرتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہ کریں پھر کیا کریں؟ نہیں پھر یہ ہے کہ نہ کریں تو میں کہوں ٹھیک ہے، اپنا سنبھالو، اپنا کرو۔ تو ماؤں بائیں قصور جو ہے نا، زیادہ جو ہے نا، وہ بڑوں کو چاہیے وہ درگزر کریں۔ اب دیکھیے ایک لڑکی باہر سے آئی ہے، مختلف ماحول سے آئی ہے، اب کا اور ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ ایڈجسٹ کرے، اور اس کو آنے والے ذرا اس کو ذرا زیادہ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش مہیا کروائے۔ نہیں مہیا نہیں ہے، بڑے جو ان کا جو سیٹ اپ چل رہا ہے اس کو چلنے دو، اس کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، وہ تو نہیں کرے گی، لیکن یہ جو اس کے اوپر وہ انٹرفیئرنس کریں گے، یہ بھی کرو وہ بھی کرو، اس کے اوپر بہت زیادہ وہ ڈال دیتے ہیں کام۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، ایک ہاتھ بچی کا مجھے میسیج آیا کہ وہ میری ساس کہتی ہے کہ اب جو ہے نا رمضان میں نے عبادت کرنی ہے، سارا کچھ تم نے کرنا ہے، 2 بچے بھی بیچاری کے ہیں، تو یہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے نا۔ نہیں، میں یہ کہتی ہوں اگر سادگی ہو،
अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सादगी हो ना। मैंने जॉब भी की है, हाँ बच्चे भी पाले हैं, और मैं घर का काम भी सारा करती थी। वो तो हमने देखा हुआ है सारा। आप इस तरीके से मैनेज करो, और देखो जो मतलब सादगी तो नहीं रही ना, सादगी नहीं रही ना, इफ्तारी में इतनी चीजें बनानी है, इतना कुछ, उसके बाद फिर खाना अलग बनाना है। ना नहीं, बस वो ये होना चाहिए सादगी। हम्म। और सादगी जो है ना, वो जो है वैसे मर्द की जो है ना वो जिम्मेदारी है। मसलन मर्द जो बेटा भी है, खामन भी है। अब माँ का अपना मकाम है, बीवी का अपना मकाम है। हाँ जी। अब मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना, वो कुरान में लिखा हुआ है, तुम उसका लिबास हो, वो तुम्हारे लिबास बेशक है। बेशक। और लिबास जो है तब वो जीनत भी होती है, जी। और वो एक दूसरे के ऐब भी छुपाते हैं। ऐब छुपाओ सबसे खाला बड़ी बात, यही तो अगर नहीं छुपाते हाँ, ना। अगर उसमें बीवी में कोई कमी है जी। तो माँ के पास जाए तो बीवी की तारीफ करे, हाँ और जब बीवी के पास जाए तो उसको कहे कि देखो मेरी माँ है, और इसको तुम इसका ख्याल करो। मर्द का जो रोल ज्यादा मर्द का सही, है, बिल्कुल, इसमें और कोई शक उसने नहीं। क्योंकि वो है अब तो मर्द ही अगर कान का कच्चा हो, मसला ये है ना। मैं एक बीवी अब मुझे सुबह एक आया मैसेज मुझे कि ना मेरा जो मियाँ है ना, वो माँ जो है गलत फलत बातें करती है, झूठ बोलती है, ये उस बच्ची के अल्फाज है। तो वो मियाँ उस पर यकीन कर लेता है, फिर मेरे से उसके हालात खराब हो जाते हैं। नहीं, बीवी में टॉलरेंस हो, नहीं टॉलरेंस तो हो, पहले देखिए फिर हालात तो खराब हो जाते हैं ना। नहीं होते, कैसे नहीं होते? इसलिए नहीं होते। अभी मुझे उसका मैसेज आया, वो कहती है हालात खराब हो रहे हैं, उसका वो क्या करे? चले मैं बताऊँ ना। हाँ। मैं एक मेरी फ्रेंड थी, मैं उसको अभी अमेरिका में है, तो कॉलेज के ज़माने में गाने गाती थी पंजाबी के। अच्छा। हाँ, वो कहता मैं वंगा वाला आया तो मैं वंगा लिया चढ़ाया हाँ। ते बाहरों आया अपना ते मेरा खामन आया ते मेरी ओदी माँ ने दिता सिखा। अच्छा। ओने फड़ लिया डंडा ते मैं वंगा लिया तड़ा। हाँ तो ये ऐसी माँ का क्या करें? नहीं, माँ के अपना मुकाम है। खाला माँ को भी तो कुछ बताए ना, मकाम तो है। माँ को भी जब जाए तो कहे माँ, हाँ। अजय वो तजर्बा नहीं है उसको, वो आपको समझी नहीं है, आप दरगुजर किया करें, और जो उसकी शिकायत हो मुझे बताया वो सुन रही होगी बच्ची आपको ना। वो जो वो अगर कुछ शिकायत है तो वो मुझे बताए, हाँ। मैं उसको ठीक करूँगा। आप डायरेक्ट ना कहा करें, माँ बेटे की सुनेगी। और बीवी को कहो कि अगर तुम्हारी माँ, मेरी माँ कुछ भी कह दे, तुमने उसको बर्दाश्त करना है और मुझसे शिकायत करनी है। वो बर्दाश्त तो कर रही है खाला, तो करती जाए, वो कर रही है बर्दाश्त। वो कहती है कि मियाँ की शक्ल बन जाती है, उसका मेरे से ताल्लुक खराब हो जाता है कि वो माँ जो है वो झूठ लगाती है। नहीं, झूठ लगाने का वो क्या जो भी कुछ है ना, नहीं तो इससे तो हालात खराब होते हैं ना। नहीं, हालात को जो है ना, अब सबकी जिम्मेदारी है ना। अब अगर फर्ज किया दो पार्टीज हैं, एक पार्टी अगर नहीं करती तो अगर दूसरी, पहले वक्तों में पता क्या होता था, जब लड़की की शादी होती थी उसको कहते थे कि या तो तुम्हारा वहाँ से जनाजा ही निकलेगा। वो अब नहीं ना रहा वो टाइम। वही वो कहती है जनाजे के लिए हम बैठे रहे, वो तो पहले ही कहती है चलो बस। नहीं, वो यही तभी। और लड़का भी कहता है, बंदा भी कहता है जाओ जाओ। नहीं, उसको कहना मैंने नहीं जाना। बात पे तलाक का लफ्ज बोलते हैं। देखिए आदमियों की भी तो सुने ना आप साइकोलॉजी, हर वक्त कहते हैं निकाल दो, तुम चली जाओ, तुम तलाक दे दो। मैं नहीं जाना, करिए, मैं नहीं जाना। अब नहीं अल्लाह जाना, ताला पर दिल खराब होता है ना। अभी मैं सुबह ही कह तलाक का रही लफ्ज तो नहीं बोलना चाहिए। अभी नहीं बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो बोलता भी है तो तलाक होती नहीं है, नहीं होती भी नहीं है। और दूसरा वो कह जी मैं तो नहीं जाना, कर लो जो मैं करना तू है। नहीं कर लो जो करना है, तो तू होर कर ले शादी से, मैं नहीं पसंद कर ले, तो चार की इजाजत है। इजाजत है, और वो एक कोई नहीं अभी संभाल सकता, तो तो पागल हो जाएगा। होड़ दे फिर उन्हें पागल, आप ही उन्हें समझ आ जाएगी। ये सही है, पागल हो रहे हैं तो 2-3 शादियां कर लो, है बिल्कुल करो। तो कहते रहते हैं ना आदमी लोग, तो कहते हैं उनको तो बड़ा शौक होता है, दूसरी ले आएंगे हम, जब ले आए। हाँ, हर वक्त वो होता ना, और वो उसको ड्रामा देते रहते हैं। नहीं तो को लाया, कोई गल नहीं, मैं भी इतने ही आ जाओ।
नहीं कोई मेरा मतलब है कि किसी चीज को भी इशू बना लो, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, इशू बना लो तो वो बढ़ता चला जाता बना है। लो। वो इलास्टिक की तरह, क्या च्युइंग गम की तरह उसको बड़ा कर लो या तो उसको अभी गोल करके ये है साइड पे रख लो बस। टॉलरेंस होनी वो चाहिए। नहीं खाना। नहीं तो डेवलप करो फिर, या रो ना, हाँ किसी को ना बताओ, खुद बर्दाश्त करो। किसी को ना बताओ, सबसे बड़ी बात ये खाला अपने घर के किसी जाके ना ना नहीं बताओ, खोलने चाहिए। हाँ किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हाँ और फिर वो मर्द जब देखेगा ना हाँ कि भाई ये, फिर वो एक देखे, ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, वक्त के साथ साथ एक देखे, आप कुरान को अगर समझ के पढ़े ना, कहीं नहीं लिखा हाँ कि बच्चों को प्यार करो, हाँ ठीक है कि नहीं, बीवी के हुकूक हैं, लेकिन माँ का दर्जा बहुत बड़ा है। हाँ और माँ जो है ना, अगर वो उसकी वो कहता है कि देखो ये मेरी भी माँ है, तुम्हारी भी माँ है, तुमने इसकी हर बात सुननी है, बर्दाश्त करनी है और बोलना नहीं आगे से। मेरी एक फ्रेंड थी, उसका मियाँ जो था ना वो डॉक्टर था और बड़ा ज़बरदस्त, और उसकी माँ जो थी ना वो बहुत सख्त मिजाज थी। तो कहते वो लड़की मुझे खुद सुनाती है, कहती है कि मेरी देवता उस मेरी सास के साथ उसके और भी बेटे थे, कोई बहू रहना पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैं उसके साथ रही। और कहती है कि मुझे जब मेरे माँ ने रुखसत किया था ना, उसने कहा था कि एक बात याद रखना, अपना मुंह बंद रखना, ज़बान से कुछ ना कहना। कहती है कि मैं ना वो कुछ भी बड़ी से बड़े बात कह दे, नुकसान हो जाए, कुछ भी करे, मैं कभी नहीं बोलूँ। इस जुबान ही तो खाला काम खराब करती है ना। अजी जुबान वो पश्तो में है ना हमारा, जब हम कलादा हम बलादा, नहीं, ये कुरान में भी लिखा हुआ है, ये आपसे हदीस है कि ये एक जो लोथड़ा है ना, ये ही है, इससे तुम अब मतलब कुरान भी कहता है कि मुंह से बात निकालो तो अच्छी निकालो, वरना चुप रहो, कॉलन सदीदा, वरना चुप रहो। तो ये है कि अपना मैं नहीं समझती कि कहीं मसले हो सकते हैं, ये इनको खुद ही बंदा वो बढ़ा ले तो बढ़ा ले, नहीं तो चुप रहे। वो लड़की कहती है कि आखिर में मेरी सास और मेरा खामन सारा ख़ानदान मौत के दो गया। कहती कि तुमने मैनेज कर लिया? कहती बस मेरी माँ की बात मैंने पल्ले बांध ली कि बोलना नहीं। कहती वो कुछ भी कहे, कुछ भी करे, मैं नहीं आगे से बोली कभी। अब वही मेरे गुण गाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बहू को ज़्यादा कहूँगी, ब्लेम करूँगी। माएँ तो देखें, हाँ आप खुद वो है ना इस वक्त सास है। नहीं मैं कभी बहू भी थी, मुझे लगता है भूल जाता है बंदे को, है नहीं, मुझे नहीं भूला। आपकी भी सास जो है तो वो भी आपके साथ सख्त थी कि कैसी? नहीं कुछ भी थी मेरी, एक दो ऐसे जब मुझे क्या, खाला कभी भी नहीं कहेंगी किसी की, हमेशा कहेगी बहुत सब बहुत अच्छे थे, सब बहुत अच्छे थे। नहीं तो वो होते अच्छे हैं। अब अगर आप खुद अच्छा हो, देखिए मुझे एक दफ़ा तुम्हारे अंकल पूछते तुम्हें कोई बुरा भी लगता है? मैंने कहा नहीं। कैसे? आइदर यू आर ए सेंट और यू फुलिश। फिर नहीं तो खाना वो वाकया तो एक है ना, जो उन्होंने पूछा कि तुम्हें कोई बुरा नहीं लगता, वो सुनाए। हाँ अंकल जो है ना वो बड़े गुस्सीले थे, और वो जो है ना खाना के साथ सही कर जाते थे। हाँ मैं एक दफ़ा वो घर से अपने रात का शाम को बचे वो खाना खिला के, तो रास्ते से आइसक्रीम ली, तो कहते कि चलो आपा की तरफ चलते हैं, उधर तो बैठ के इकट्ठे आइसक्रीम खाएंगे। तो हमारे घर आ रहे थे, रास्ते में हो गई झड़प। नहीं रास्ते में ऐसे झड़प हुई, तो हमारी लेडी डॉक्टर थी, उसके बारे में उन्होंने ना कुछ नेगेटिव बात कही। मैंने कहा नहीं ये तो बहुत अच्छी है। तो कहते हैं तुम ये बताओ तुम्हें कोई बुरा भी लगता है? नहीं। तुम्हें सबके अच्छे सब अच्छे नहीं होते। मैंने कहा नहीं मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो कहती कोई बुरा नहीं लगता? मैंने कहा नहीं। कहते अच्छी तरह सोचो। नहीं। मैंने कहा नहीं बुरा लगता कोई। कहते फिर सोचो, अच्छी तरह सोचो। मैंने कहा आप और उसी वक्त वहीं से कार मोड़ ली। क्या बैल मुझे मार है। और चुप, हमारी लड़ाई ऐसे होती थी कि बस चुप कर होगा, चुप।
बस अंदर आए तो मुझे कहते, मुझे क्या कहा करते थे, तुम कभी सॉरी नहीं कहती हो। हाँ, मैंने कहा मुझे तो लगता ही नहीं मैं कभी कभी गलत कुछ को कहा है। बात कही है, मैं तो जो कहती हूँ अपनी तरफ से सही ठीक कहती हो। क्या बात की है खाला, नहीं, बिल्कुल सही। वाकई। मैंने कहा मैंने तो अपनी तरफ से ठीक बात की, तो इसीलिए मुझे कोई इसलिए नहीं बुरा लगता कि मैं किसी के साथ बुरा करती ही नहीं How हूँ, nice, ना how किसी nice. का सोचती हूँ बुरा, ना करती हूँ, तो मैं कहती हूँ कोई क्यों करेगा, हाँ, जब मैं नहीं कर रही तो कोई क्यों करेगा। और मेरी जिंदगी माशाल्लाह ऐसी माशाल्लाह, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बहुत छोटे अच्छी गुजरी, अल्लाह का शुक्र है। ये और आगे भी अल्लाह ताला बहुत अच्छी गुजारे। इंशाल्लाह, और ये मेरी जो इंशाल्लाह। खाला है बड़ी प्यारी है, बड़ी अल्लाह से स्वीट नेक खाला गुमान है। रखो, अल्लाह से नेक गुमान जो रखो। गुमान जो तुम्हारा वाह, गुमान वाह, गुमान वाह, होगा वाह, उसी वाह, के बिल्कुल। मुताबिक। ये तो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का कहना है, तो अल्लाह की कोई बात है झूठी, कुरान का एक एक लफ्ज़ सच है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो हर एक को, अपने बच्चों को भी हर एक को कहती हूँ कि मैं हर एक को कहती हूँ कुरान को समझ के पढ़ो। समझ के पढ़ो। मैं उस दिन गई बैंक, तो बैंक मैनेजर मुझे पूछता है हाँ, कि आपके कितने बच्चे हैं। मैं बताने लगी, मैंने कहा आप बताएं आप नमाज़ पढ़ते हैं। हाँ, कहते बस पूरी नहीं पढ़ता। मैं क्यों नहीं पढ़ते, क्या वजह है? जो अल्लाह ने 5 का हुक्म दिया है, हाँ। तो अल्लाह का हुक्म क्यों नहीं बिल्कुल, मानना? अल्लाह और कोई मुश्किल नहीं हाँ, है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है। मुश्किल नहीं है। फिर आगे से क्या कहता है, पढ़ूंगा। नहीं कि फिर बेचारा लाजवाब हो गया। नमाज तो मेरी पढ़नी अम्मी चाहिए, जो थी हाँ, ना, नमाज मैंने तो नानी अम्मी से सीखी है, और नानी अम्मी के कहने पे मैंने शुरू की। और तो आपने सबको, हमारे सबको खानदान फिर में सबको बच्चे नमाज। अच्छा मैं एक अपना बात बताऊं, हम ना, मैं अपने शुजा को कहा कि मैंने अपनी माँ को अपने साथ रखना है, तो कहते हैं ठीक है, जब हम हमारा घर वगैरह रिटायर होंगे तो फिर ले आना। उनसे बोलो। तो मैं ना पिंडी में हमें घर मिला, तो हम एक शुजा की आदत थी, कभी कार निकालते थे गेट नहीं बंद करते थे। अच्छा, गेट हमेशा खुला रखता है, हाँ, क्योंकि वो थे बड़े, खुद भी उन्होंने कभी बात कोई गेट खोले, पहले सर्विस में थे तो बैटमैन खोलता था, ये थे। हाँ। अच्छा, तो वो खुला ही होता, हम वॉक करने जाते थे तो गेट खुला। तो एक दिन मेरी हमसाई पूछती है, आपका गेट कभी बंद नहीं होता क्यों? मैं क्या बात ये है कि मेरा मियाँ उससे होता नहीं है बंद। वो कहता है बस ठीक है कोई गल नहीं। हाँ, मैंने कहा सामने मेरी अम्मी का कमरा है, हाँ, अगर कोई चोर आया ना हाँ, तो वो सीधा मेरी अम्मी के कमरे जाना है। हाँ। अम्मी ने उसको कहना है कि पुत्र तू सलाम नहीं कीता। अच्छा, फिर उन्हें कहना तू नमाज पढ़ी कि नहीं? हाँ। चल वज़ू कर तो नमाज पढ़। मैंने कहा हमारे घर कोई नहीं आएगा। ये तो खाला बहुत ही प्यारी बात और ये बताई। हकीकत है। नानी भी वाकई पूछती थी। वो हर एक से हाँ। सलाम क्यों नहीं कीता, हाँ, नमाज पढ़ी कि नहीं? हाँ, चल वज़ू कर तो नमाज पढ़। मैं भी कोशिश करती हूँ, आपको पता ही है, हाँ, सबको माशाल्लाह, बताती हूँ, बड़े माशाल्लाह, मैंने लोगों को पढ़वाई भी है बिठा बिठा के। मेरे सारे बच्चे, मैंने एक दफ़ा लाली से पूछा, मैंने कहा तुम्हें दुआए कुनूत आती है? कहता हाँ। मैंने कहाँ से सीखी? कहता बाजी, सिमी बाजी ने सिखाई। नमाज सब पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो से सबको सिमी बाजी ने नमाज सिखाई। तो बस ये सिखानी चाहिए खाला, जहाँ जहाँ मौका मिले हैं। यही तो नेकी है, यही तो नेकी है। मैं तो यही कहती हूँ, अभी मैं खाला के पास भी इसीलिए आई हूँ कि इतनी प्यारी बातें करती हैं, तरीके से हमें समझाती हैं, और खाला लोग सुनते हैं, और खाला आपको बहुत तारीफ करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, कहती हैं इतने अच्छे अंदाज से बात करती हैं। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहे, खुशियाँ बांटें और अच्छी जज़ाकल्लाह। बातें बांटें, है ना, अच्छी बात करें, नहीं तो चुप ही रहे। बिल्कुल, एक चुप 100 सुख। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।